Hello students, welcome to our current affair class. In this class we will discuss some important current affairs. So आज की क्लास में हम 29th of August 2024 के कुछ important current affairs discuss करेंगे which are very important for any competitive exams. So let's start our today's session. In today's class, आज की क्लास में we will discuss some important national news which are very important. Then we will discuss some important financial news. We will also discuss some news which are related to sports and events, some agricultural news, some economic news, some business news. We will also discuss some important recent appointments, some science and technology news, as well as some news which are related to science and environments, some international news, some state news, some banking news, important summit and conference recently conducted, and some important days. So these are the topics we will cover in today's class. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। Now let's start the session with our first national news. First national news is related to the central government initiative which is Jal Jeevan Mission, which was started by Prime Minister Narendra Modi on 15th of August 2019. So इस बार 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। इस मिशन को 5 साल पूरे हुए हैं इस बार इंडिपेंडेंस डे और 15 अगस्त 2024 को। सो 5th एनिवर्सरी ऑफ जल जीवन मिशन। सो कुछ स्टैटिक न्यूज हैं जो हमें और स्टैटिक पॉइंट्स हैं जो हमें इस जल जीवन मिशन से कवर करने हैं। So on 15th of August 2024, India celebrated the 5th anniversary of Jal Jeevan Mission, a flagship scheme launched by Prime Minister Narendra Modi on 15th August 2019. तो 15 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था और अभी इसके 5 साल पूरे हुए हैं। What was the purpose or what is the initial purpose of this scheme? This scheme initiative implemented by the Department of Drinking Water and Sanitation. So it's a Department of Drinking Water and Sanitation under Ministry of Jal Shakti aim to provide clean drinking water to every household. So हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचे, इस इनिशिएटिव के साथ इस स्कीम को 15th of August 2019 को स्टार्ट किया गया था। As of 12th of August 2024, the mission has successfully provided tap water connected to 11.82 crore additional rural households, increasing the total cover to 15.07 crore houses, which is 77.98% of all rural houses in India. सो इस मिशन ने जो 11.82 करोड़ अतिरिक्त जो ग्रामीण परिवार है उनको नल जल का कनेक्शन प्रोवाइड कराया और कुल कवरेज जो है इसने 15.07 करोड़ परिवारों तक बढ़ाई है। क्लियर। एडिशनली 188 डिस्ट्रिक्ट्स, 1838 ब्लॉक्स, 109,996 ग्राम पंचायत एंड इट कवर 233,209 विलेज हैव अचीव्ड द हर घर जल स्टेटस। तो लगभग भारत में 188 जिले, 1838 ब्लॉकें, 1,09,996 ग्राम पंचायत और 2,33,209 गांवों को हर घर जल का दर्जा हासिल हुआ है। मतलब इतने गांवों, इतनी जगहों तक इस मिशन को सक्सेसफुली बेसिकली इस मिशन ने अपना सक्सेस दिखाई है, सक्सेसफुली वाटर प्रोवाइड कराया है प्योर फॉर ड्रिंकिंग। क्लियर। तो जल जीवन मिशन लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 15th अगस्त 2019। अभी से 5 साल पूरे हुए ऑन 15th ऑफ अगस्त 2024। टारगेट वाज 11.82 for additional households and total increase by 15.07 crore households. And additionally, 188 districts, blocks, gram panchayats and villages have achieved the Har Ghar Jal status.
Next is also a national news. Recently, Prime Minister Narendra Modi chairs 44th Pragati Interaction. What is Pragati? Basically, Pragati is a ICT-based platform for proactive governance and timely implementation innovation, both the center and state government. So recently, Prime Minister Narendra Modi chaired the 44th edition of Pragati on August 28. तो अगस्त 28 को इसका 44th एडिशन क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डील किया है. तो प्रगति इज एन आईसीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन इनोवेशन इन्वॉल्विंग बोथ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग इन मोदी इज थर्ड टर्म. तो मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है, उसमें उनकी ये पहली बैठक है या पहली मीटिंग है. क्लियर. Now let's move to our next news, which is also our national news. So India's second nuclear mission submarine commissioned by Union Minister or Union Defense Minister Rajnath Singh. Defense Minister Rajnath Singh commissioned India's submarine, including power ballistic missile submarine known as INS Arighat in Visakhapatnam. तो INS अरिघात को भी विशाखापट्टनम में बेसिकली क्या कर लिया गया है, स्थापित कर लिया गया है. दिस सबमरीन इक्विप्ड विद 750 किलोमीटर रेंज K-15 नियर बैलिस्टिक मिसाइल्स will enhance Indian nuclear deterrence and second strike capability in Indo-Pacific region. तो आपको नाम याद रखना है, INS अरिहंत सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे अभी कमीशन किया गया है बाय राजनाथ सिंह इन विशाखापट्टनम. Next is also a national news. Recently, Cabinet approved setting up of 12 industrial smart cities in 10 states. तो recently सेंटर मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अप्रूवल के बाद 12 न्यू प्रोजेक्ट बेसिकली अभी कैसे 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का अप्रूवल दे दिया. और ये कितने राज्यों में बनेगी? 10 राज्यों में. So the Cabinet Committee on Economic Affairs, led by Prime Minister Narendra Modi, approved 12 new projects under the National Industrial Corridor Development Program under NICDP, with an investment of Rs 28,602 crore. This initiative aimed to create a network of industrial nodes and cities, boosting economical growth and global competitiveness. क्लियर. तो इन 12 न्यू स्मार्ट सिटीज के लिए बजट रखा गया 28,602 करोड़. और कितने स्टेट्स में स्टैब्लिश की जाएंगी? ये टोटल भारत के 10 राज्यों में 10 स्टेट्स में इन्हें स्टैब्लिश किया जाएगा. सो वी हैव डिस्कस इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज. नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज. तो रिसेंटली आरबीआई कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विसेज. तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, किसी भी बैंक एनबीएफसी का लाइसेंस कैंसिल करना है तो किसके पास ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है? तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, RBI got power, he can basically provide license and cancel license for any financial organization. तो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत आरबीआई के पास पावर है. तो रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल द सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ड्यू टू हाई नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड रीपेमेंट डिफॉल्ट्स. सो अभी क्या हुआ है, एज आरबीआई रूल्स हर बैंक को अपना कम से कम मैक्सिमम 6% एनपीए मेंटेन करके रखना पड़ता है. मींस 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एनपीए हमेशा कितना होना चाहिए? 6 से कम होना चाहिए, 6% से कम होना चाहिए. इसका मतलब क्या है 6% से? देखो एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो एसेट्स जो बैंक के लिए परफॉर्म नहीं कर रही है. मींस वो लोन्स जो 90 डेज या उससे ज्यादा डिले हो गए हैं, लोगों ने रीपेमेंट नहीं किया है, तो बैंक उन्हें किस में डाल देता है? एनपीए में डाल देता है. अब अगर बैंक ने 100 करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है तो मैक्सिमम 6 करोड़ अमाउंट एनपीए में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो अभी मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का एनपीए बहुत हाई था, जिससे रीपेमेंट डिफॉल्ट्स हो रहे थे, जिस वजह से आरबीआई ने इसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है. द कंपनी फेल टू मेंटेन द रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल स्टैंडर्ड एंड डिफॉल्टर्स ऑन सिग्निफिकेंट repayments. Clear? Now, next is a sports news. India wins silver in Maruhaba Cup at Asian Surfing Championship.
तो भारत ने क्या किया है, द इंडियन सर्फिंग टीम वॉन द सिल्वर मेडल एट द टीम चैंपियनशिप मरुआ कप एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 व्हिच वाज हेल्ड इन मालदीव्स। तो मालदीव्स में अभी एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप कंडक्ट की गई थी, जहां पर इंडिया ने क्या कौन सा कप जीत लिया है, सिल्वर मेडल जीत लिया अंडर मरुहाबा कप। This achievement has secured India's first ever surfing sport for the 2026 Asian Game in Aichi, Nagoya, जापान। सो 2026 के एशियन गेम्स होंगे, भारत उसके लिए तैयार हो रहा है। भारत ने उपलब्धि हासिल की है किसके अंदर, सर्फिंग के अंदर। Next news is also related to the sports news. Recently, England David Malan retired from international cricket. सो डेविड मलान कहाँ के प्लेयर हैं, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। किस स्पोर्ट्स, किस इवेंट से ताल्लुक रखते हैं, तो ये क्रिकेट से ताल्लुक रखते हैं। तो डेविड मलाना फॉर्मर टॉप रैंक T20 बैटर announced his retirement from international cricket at the age of 36. Malan has secured centuries for England in all formats and leave behind a legacy of significance achievement. Clear? Okay. Now, next news. Next news is also related to the sports news. Karthik Venkatramanya clinched second Indian national title. सो अभी कार्तिक वेंकटरमन ने दूसरा भारतीय राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया है। तो कार्तिक वेंकटरमन won 61st edition of the Indian National Championship with 911 points. This is his second national title, having previous won in 2022. तो पहले इन्होंने 2022 में टाइटल जीता था, अभी दोबारा से इन्होंने इस टाइटल को जीत लिया। सूर्य गांगुली एंड नीलेश शाह फिनिश सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली ऑन टाई ब्रेकिंग। क्लियर? Okay. Next is a news related to the agriculture basically. तो एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड अगली न्यूज है। ICAR. What is ICAR? Indian Council of Agriculture Research, CIFE, Center Institute of Fisheries Education and WAMNICOM. WAMNICOM is Vaikunt Mehta National Institute of Corporation Management sign a MOU. सो न्यूज बता रही है कि तीन ऑर्गेनाइजेशन है, ICAR, CIFE एंड वेमनिकॉम। दीज थ्री ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली साइन अ MOU। सो हमें MOU ही पढ़ना है कि इसका मेजरली पर्पस क्या है। So on August 26, 2024, the Indian Council of Agriculture Research, Center Institute of Fishery Education and Vaikunt Mehta National Institute of Corporation Management sign a memorandum of understanding to enhance cooperative management in fisheries sector. तो जो मछली पालन है, जो मत्स्य पालन है, उसको बढ़ावा देने के लिए तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने ये साइन किया है। तो दिस partnership aim to promote advanced technology integration and value addition in fisheries cooperation. तो इस पार्टनरशिप से होगा क्या, बेसिकली जो फिशरी सेक्टर है उसके अंदर क्या होगा, एडवांस टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेशन और वैल्यू एडिशन का काम होगा, जिससे फिश प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन ए MOU विद माइक्रोसेव। So there is another MOU which is signed between Ministry of Rural Development and Microsave. So let's understand the news. एक बार न्यूज समझते हैं कि इसका पर्पस क्या है बेसिकली इस MOU का। तो the Ministry of Rural Development has signed a MOU with Microsave Consulting to optimize the यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ताकि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड को का ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन हो सके, उसके साथ साथ एनहेंस द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनको बढ़ाया जा सके, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और माइक्रोसेव ने एक MOU साइन किया है। The partnership aimed to transfer selected cluster level federation into microcredit institute, providing efficient financial service to help self-help group members. तो इसमें रूरल एरिया में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो नाबार्ड का इनिशिएटिव है, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों की जो स्किल्स है उसको क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, जिससे फाइनेंशियल सर्विसेज भी सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों की इंक्रीज होंगी। क्लियर? ओके।
Now, next is a business news. Recently, Gujarat replaced UPS top investment designation. So, according to an RBI study, RBI ने study किया, Gujarat has replaced Uttar Pradesh as the top investment designation in financial year 24. Gujarat received fund for 154 project, accounting for 14.7 of the टोटल प्रोजेक्ट फाइनेंस बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग गुजरात ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्वेस्टमेंट डेजिग्नेशन में टॉप किया है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सैंक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 रीच अ हायर रिकॉर्ड ऑफ 3,90,974 crore. Now, next news is related to the appointment news. Satish Kumar appointed chairman and CEO of Railway Board. तो recently ACC appointment committee of the cabinet ने सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के CEO and chairman अपॉइंट किए हैं and he will effective from 1st of September 2024. Clear, he is the first person from the scheduled caste community to hold this पोजीशन। तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ये पहले पर्सन है जो इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। नेक्स्ट इज ऑल्सो अपॉइंटमेंट न्यूज। वाइस एडमिरल राजेश धनकर टेक ओवर एज डायरेक्टर जनरल प्रोजेक्ट सीबर्ट। तो वाइस एडमिरल राजेश धनकर ने अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बोर्ड की बेसिकली का पद संभाला है। तो ऑन अगस्त 28, 2024 वाइस एडमिरल राजेश धनकर टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सीबर्ट सक्सीडिंग वाइस एडमिरल तरुण सोबती। तो पहले इस पोस्ट को कौन डील कर रहे थे? तरुण सोबती डील कर रहे थे, अभी इन्होंने इस पोस्ट को डील किया है। ही विल ओवरसीज इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एज अ कारवान नवल बेस। तो कारवान नवल बेस में ये भारत के सबसे बड़े डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। Next is also appointment news. Recently, Subhashri appointed as a MD and CEO of Shriram Capital. So Shriram Capital appointed Subhashri as its new managing director and CEO, and she will effective from 1st of September 2024. Subhashri has been with the company since 1991 and previously served as a joint managing director. तो पहले joint managing director की पोस्ट पे थी और अभी इन्हें MD and CEO अपॉइंट किया गया है श्रीराम कैपिटल की। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हैज साइन ए MOU विद अल्फामर्स लिमिटेड। सो बेसिकली यहाँ पर भी एक MOU साइन हुआ है बेसिक साइंस स्पेस टेक्नोलॉजीज के बीच में, इसरो SEC और अल्फामर्स के बीच में। सो समझते हैं क्या पर्पस है इस MOU का। The major purpose is to develop an AI model to detect and profile marine pollution in Indian coastal waters. तो जो कोस्टल गार्ड्स हैं, जो मरीन पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए एक AI मॉडल तैयार करेंगे इसरो और अल्फामर्स। This partnership aims to enhance the accuracy and efficiency of identifying pollutant using remote sensing technology. तो remote sensing technology के थ्रू पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करना काफी इजी होगा। नेक्स्ट इज न्यूज ऑल्सो इज रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। रिसेंटली एक्सियोम स्पेस नोकिया पार्टनर फॉर 4G टेक्नोलॉजी इन रूरल lunar space suits. So Axiom Space has partnered with Nokia to integrate 4G LTE communication technology into their next generation space suit for NASA Artemis 3rd lunar mission. तो नासा आर्टेमिस 3rd लूनार मिशन के लिए जो स्पेस सूट तैयार किया जा रहा है उसमें बेसिकली इंटीग्रेटेड 4G कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए एक्सियम ने नोकिया के साथ पार्टनरशिप की है। This technology will enhance space exploration by allowing real-time HD video transmission from the lunar surface to Earth. नेक्स्ट इज साइंस एंड एनवायरमेंटल न्यू प्लांट स्पीसीज डिस्कवर इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अभी एक न्यू प्लांट स्पीसीज डिस्कवर की गई है। सो 3 botany professor from Nagpur has discovered a new species of Clisthene collinensis plant name basically Clisthene diksha bhumia in the Ambadgar Fort, Bhangarh district, Maharashtra.
सो एक नई स्पीसीज डिस्कवर की गई है अंबरगढ़ फॉरेस्ट में, भानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में. दिस इज द 9th स्पीसीज ऑफ क्लीन बेसिकली क्लीनस्थेन्स कॉलिनस डिस्कवर इन इंडिया. तो क्लीनस्थेन्स कॉलिनस की ये 9th स्पीसीज है जिसे अभी डिस्कवर किया गया है. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल न्यूज. तो टाइफून शनशन मेक्स लैंडफॉल ऑन जापान काइशू आइलैंड. तो रिसेंटली टाइफून शनशन हिट जापान सदर्न वेस्ट मेन आइलैंड ऑफ काइशू ऑन अगस्त 29 causing heavy rain and strong wind. तो आपको याद रखना है शानशान. पहले तो जो भी साइक्लोन्स आते हैं बेसिकली पैसिफिक ओशियन, चाइना के आसपास, जापान के आसपास, तो उन्हें क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है. तो उस टाइफून का नाम क्या है? शानशान. शानशान ने अभी जापान को हिट किया है, स्पेशली जापान के सदर्न वेस्ट मेन आइलैंड क्वाइशू को. At least 40 people were injured and the Japan Meteorological Agency urged residents to stay alert for natural disaster. Public transport was also disrupted and some homes basically lost power. Clear? Okay. Next is Iran appoint Fatima Moharjerani as first female government spokesperson. So for the first time, Iran has appointed a woman as a government spokesperson. Fatemeh Moharjerani ko basically was appointed by President Mosouk and approved by the cabinet of minister. The first female spokesperson in Iran. Next is state news. Recently, Uttar Pradesh Digital Media Policy Influence Incentive and Scheme Promotion. So Uttar Pradesh government introduced the Digital Media Policy 2024, which incentivizes social media influencer to promote state initiative and schemes. तो जो स्टेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर वो यूपी की जो जितनी भी स्कीम्स हैं और स्टेट के जो इनिशिएटिव है उन्हें प्रमोट करते हैं तो उन्हें इंसेंटिव मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से. दिस पॉलिसी एम टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट, पाकिस्तानी क्रिश्चियाना बिकेम फर्स्ट गोवन टू ऑब्टेन इंडियन सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. So on August 28, 2024, Goa Chief Minister Pramod Sawant awarded Indian citizenship to Joseph Francis Ferrari at 78-year-old Pakistani Christiana under the CAA. This is the first instance of a Goan receiving citizenship through this amendment. तो पहली बार है कि किसी गोवा के बेसिकली पर्सन को ये सिटीजनशिप मिली है. नेक्स्ट इज बैंकिंग न्यूज. ESAF Small Financial Bank launch Inori Rupee Platinum Credit Card. So ISAF Small Financial Bank in collaboration with NPCI National Payment Corporation of India launched the Inori Rupee Platinum Credit Card. तो Inori Rupee Platinum Credit Card is launched by किसने लॉन्च किया है? ISAF Small Financial Bank ने with the help of National Payment Corporation of India. This premium card offer exclusive benefit and privileges to its होल्डर्स. तो काफी सारे लाभ मिलेंगे और काफी प्रिविलेजेस मिलेंगे इसके होल्डर्स को. नेक्स्ट इज सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस न्यूज. सेकेंड मीटिंग ऑफ जॉइंट रशियन इंडियन कमीशन. तो अभी जॉइंट रशियन इंडियन कमीशन की सेकेंड मीटिंग कंडक्ट की गई है. कहां पर? मॉस्को, रशिया में. द इंडियन डेलीगेशन वॉज लीड बाय श्री नित्यानंद राय. तो इंडिया की तरफ से किसने लीड किया है इसे? नित्यानंद राय ने लीड किया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, जो मिनिस्टर हैं स्टेट के अंदर होम अफेयर्स में. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज. इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 2024 ऑब्जर्व ऑन 29 अगस्त. तो हर साल 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं परमाणु परीक्षण विरोधी इंटरनेशनल डे और अंतर्राष्ट्रीय दिवस. दिस डे हाईलाइट द डिवेस्टेशन एफर्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग एंड नीड फॉर अ होल world free from nuclear threat. Over 2000 nuclear tests has been conducted since 1945, causing environmental damage and human suffering. And this is the last today's question. National Sport Day 2024. So on 29th of August, on the honor of or to celebrate the honor of the spirit of sport, we do celebrate National Sports Day on 29th of August.
This day also commemorate the legacy of Major Dhyanchand, India's legendary hockey player. The theme for 2024 is sports are an enabler to an inclusion and fit society. खेल एक समावेशी और फिट समाज के लिए एक सक्षम करता है. क्लियर? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो हमने कवर की हैं 29th of August की. नाउ आई होप यू लाइक दिस सेशन. थैंक यू.